Last time we finalized our design with the cascade proportional integrator compensator, and now we will be moving towards cascade lag compensation. Uh, so the transmittance in this case is GC of S जो है आपका, that is this KS plus A divided by S plus B, where all the K, A and B are positive constants and A is greater than B. And can anyone tell me that what was the transmittance for PI compensator? Alina? Halima? Sir, K into S plus A divided by S. K into S plus A divided by S. So the difference here is that you are introducing both poles and zeros, but in PI compensator the pole was placed at S is equal to 0, but here the pole is placed at S is equal to minus B and the 0 is placed at S is equal to minus A as it was placed in your PI compensator. Effect on steady state errors improved, but not as improved as and that was the case in um, PI का compensator. Relative stability जो है वो आपकी reduce हो रही है. Change in n minus m जो है वो 0 है because आप एक pole और एक 0 जो है वो add करा रहे हैं, so there will be no change in your n minus m and the difference between number of poles and number of zeros. And the change in centroid, if n minus m is a constant, in that case that would be the change in centroid. It will be the shifting of the centroid on the real axis. That would be calculated as a minus b divided by n minus m, and the type number will not be changed because जितने आप zeros ऐड करा रहे हैं उतने ही आप, in fact there is no TEFS के अंदर जो है कोई पोल जो है ऐसा नहीं है, कोई रूट ऐसा नहीं है जो कि s is equal to 1 के लिए अवेलेबल हो. So the proportional plus integral PI compensator is a special case of lag compensation for which B is equal to 0, because अभी थोड़ी देर पहले हलीमा ने बताया है कि PI के लिए आपका जो GCFS था that was equal to K S plus A divided by S, and here for लैग कंपनसेशन के लिए हमारे पास जो ट्रांसमिटेंस है दैट इज के एस प्लस ए एस प्लस ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी, एंड नाउ वी आर सेइंग दैट फॉर बी इज इक्वल टू 0 this thing is a special case of this particular case of transmittance of cascade lag compensation. Or as A is greater than B, we have already said that A is greater than B. So what will happen? The compensator 0 is to the left of the compensator pole on the complex plane. So that's the situation. अगर मेरे पास ये मेरे पास S plane है, if A is greater than B, then my 0 is placed over here. Suppose this is at A, और जो pole है मेरा that is here. So this is A, this is B. As A is greater than B, so we can say that our 0 is to the left of your compensator pole on the complex plane. Now this compensator doesn't increase the system type number, as we have already said. The steady state performance can be improved over that of the compensated system. Now, design of the lag compensator is supposed to improve the steady state performance while minimizing the loss of relative stability. So the centroid for this compensation systems moves to right by A minus B, as A is greater than B. So in that case, that would be moving towards the right. Any questions regarding this? The basics of this lag compensation design. Any questions, please ask.
जी बेटा, हलीमा, अलीना, हाजिक, इरफान, एनी क्वेश्चन बेटा? नंग्याल? No, sir. ग्रेट। सर पिछले से एक क्वेश्चन सर, जो जीरो ऐड करते हैं ये स्टेबिलिटी पोल स्टेडी स्टेट एरर। इरफान बात कर रहे हैं? जी सर। जी बोले। सर पोल जो हम ऐड करते हैं सर, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी जो स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव करता है, और जीरो स्टेबिलिटी। नेचुरली आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पोल आपने जितना इसके जियोमेगा एक्सिस के साथ ऐड किया है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी आपकी कम हो रही है। यहाँ पे भी देखें, इस केस में भी आप देखें तो आपका पोल जो है वो जीरो से राइट साइड पे है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है आपकी रिड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू जो आपका प्रोपोर्शनल गेन कॉम्पनसेटर है। एज कम्पेयर टू दैट वी आर रिड्यूसिंग दैट रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, सो we want to minimize that loss of relative stability while having to get the steady state performance improved. Have I answered your question beta? Yes sir, thanks sir. Okay. इससे रिलेटेड जो अभी तक चीजें लैग कॉम्पनसेटर की देखी हैं, इससे रिलेटेड कोई इशू इरफान? No sir. Okay. So the ratio of the error coefficient of the uncompensated system to the error coefficient for the cascade lag compensated system is given by this thing. And how this is calculated, we can the error coefficient for an uncompensated system अगर मुझे find out करना हो, kappa I जो है that would be equal to ku limit s tends to 0 s raised to power I and GPFS. And actually from where we are getting it, the actual equation is that Ki is equal to limit s tends to 0 GCFS GPFS s raised to power I. And in this particular case, uncompensated system के केस में ये जो चीज़ है मेरे पास, that is equal to Ku, so that's why I'm doing this thing. And as a result of that, so that's my result for uncompensated system. और अगर मुझे lag compensated system को देखना हो, जी any idea किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे? Because the actual equation is this one, s tends to 0 s raised to power I GCFS GPFS. So what will happen? Do we know GCFS? So K plus plus. So it is s raised to power I K s plus A divided by s plus B into GPFS, and this would be applying the limit on this portion K A would be, and in fact this would be limit s tends to 0 SI GPFS. And if I'm interested in knowing the ratio of that, that is KI compensated divided by KI uncompensated, and that's equal to K A over B limit s tends to 0 SI GPFS, and denominator में आपके पास क्या आ जाएगा? That is KU limit s tends to 0 SI GPFS. So this ratio will be K A over B divided by KU, or you may write it as K over KU into A over B. So that's what we were saying here.
This is the ratio of the error coefficient of the uncompensated system to the error coefficient for the cascade lag compensated system, for which the pole position or the transmitted pole and zero position in the form of the transmittance is given to us, and we can find the error coefficient for our lag compensation system. We know the error coefficient for our uncompensated system, and we can get the ratio of that. Any question, any confusion? Okay, so the design approach will be to select the ratio, this ratio A over B equal to the factor by which the error coefficients is to be increased. आप जितना error coefficient increase करना चाह रहे हैं, आप इस ratio को जो A over B ratio है, आप उसको उतना ही increase करते जाएंगे. So B is actually, इस ratio को हम क्या देते हैं, this is D. So D is equal to A over B and we are interested in this ratio. मैं इस A और B को जितना increase करना चाहता हूँ, मैं D को उतना ही बढ़ाता चला जाऊँगा. So in fact, अगर D मुझे पता है तो B भी पता है, so B is equal to A over D and I have to keep this D greater than 1, and you know that in the design we will be starting our design from the gain of the uncompensated system, so K is equal to KU, so the error coefficient is increased by the factor D. So KI जो है आपका compensated system का जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं cascade lag compensation में, that would be equal to KI uncompensated, because KU जो है वो आपस में cancel out हो जाएगा इस केस में, and you will be left with KI compensated will be equal to KI uncompensated into A over B, and A over B is equal to D. So this is the situation. Any confusions regarding this? जी बेटा, अलीना, हलीमा, इरफान, नंगियाल, any questions? No sir. Nangyal? No sir. Okay, and if this D approaches infinity, the cascade lag compensator becomes cascade PI compensator, and the question is why? जी इरफान बताइए. When D approaches infinity, the cascade lag compensator becomes cascade PI compensator. किस वजह से? सर वो जो पोल वो 0 पे हो जाता है. जो पोल है वो 0 पे हो जाएगा, because D is equal to A over B, और D infinity का मतलब ये है कि B जो है that is going to be 0. In that case आप जो है आपका जो ये सिचुएशन जनरेट हो जाती है, B अगर आपका 0 हो जाए तो you will be ending up with the PI compensator के ट्रांसमिटेंस के इक्वल हो जाएंगे. So your cascade lag compensator जो है that would become cascade PI compensator when D is equal to infinity. But there are certain issues कि हम उसको infinity की तरफ, या we cannot have it very large because the large value of D creates a problem in fabricating a reliable RC circuit with a zero and pole widely separated, because जितना ज़्यादा आपका D बढ़ता चला जाएगा, आपका एस प्लेन में D और A और B की जो सेपरेशन है, ये पोल और ज़ीरो की जो सेपरेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, और इसकी वजह से हम प्रैक्टिकली D जो है दैट इज़ इसके लिए D इज इक्वल टू हम 10 ही रखते हैं इन द लिमिटेड रेंज ऑफ 10. सो डिज़ाइन अगर हम देखें कि लैग कंपनसेटर का, दैट इज़ सिमिलर टू डिज़ाइन ऑफ PI compensator. The only difference is that instead of K and A in PI compensator, here in lag compensator we have to select K, A and D. यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं जो हमने देखने हैं, जबकि PI compensator में हमने देखा था कि हम वहाँ पे 2 पैरामीटर्स को देख रहे थे. हम K और A को चूज कर रहे थे. क्या करते थे, K को फिक्स करते थे और उसके बाद A के लिए हम रूट लोकस जो है ऑप्टिमम रूट लोकस देखते थे फॉर मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी, और उसके बाद उस A को फिक्स करके फिर K को ट्यून करते थे, और फिर इसी तरह से ये प्रोसेस जो है हम देखते रहते थे टिल द टाइम you get your desired
performance specifications. Here it will be somehow different कि अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 3 पैरामीटर्स होंगे. You will be having K, you will be having A and D, and we are saying कि D जो है हम उसे फिक्स कर रहे हैं D पे 10 पे. तो इस बात का मतलब क्या होगा, it is almost similar to what we were doing before. अब D जो है in terms of अगर मैं A ले आऊं which is A over B, तो इन दैट केस अब D भी आपने ले लिया, तो इस बात का मतलब है कि आपको B की वैल्यू पता चल गई है. आपका K जो है दैट इज इक्वल टू KU. अब आप इस आपने जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ K एंड A एंड K इज इक्वल टू KU पे आपका ट्रांसफर फंक्शन A की फॉर्म में है, एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग और changing that transfer function in terms of 1 plus A GFS HFS की फॉर्म में आप लेके आएंगे. आप उसको प्लॉट करेंगे और again you will be finding A for maximum relative stability, and then you will be examining the root locus and step response with K variable while A and D are fixed. So the process will be similar to what we were doing in PI compensation. Irfan, any question beta? No, sir. Yeah. Okay, this is the same example which we did in case of PI or in case of proportional gain या uncompensated system के context में हमने देखी थी. GPS is the same. So अगर situation देखी जाए तो it's the same thing. So that's my GCFS, GPFS. That's my input, that's my output, negative feedback. So that's the situation. GCFS क्या है? That is K S plus A divided by S plus B. GPFS क्या है इस केस? That is equal to given है 1 plus S square plus 4S plus 5. तो ये सिचुएशन है मेरे पास. सो K इज इक्वल टू KU. अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम वाला जो हमने गेन जो है उसी को फिक्स करना है, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 3. इसके ऊपर आपकी जो डैम्पिंग रेशियो थी दैट वाज इक्वल टू 0.707 इफ यू डोंट रिमेंबर. इस वजह से हमने इसको K इज इक्वल टू 3 जो है वो चूज किया था. देन द कंपनसेटर फॉर द वेरिएबल A इज, नाउ दिस इज द सिचुएशन. सो GCFS जो है आपका दैट इज 3S plus A divided by मेरा ख्याल है यहाँ पे गलती है. दिस शुड बी इसको हमें ये GCFS ये मेरा ख्याल है मैंने दूसरे वाला लिख दिया है. सो GCFS विल बी इक्वल टू 3S plus A divided by S plus 0.18 because B is equal to A over D and it is equal to A over 10, so it is 0.18. So that's the situation. Any confusion? No, sir. Okay. Now the overall transfer function जो है हमारा, we know it that it is equal to GCFS into GPFS divided by 1 plus GCFS into GPFS, and we will be transforming it into this form. So अब अगर transfer function मैं लिखना चाहूँ तो it will be something like that. So TFS will be equal to S plus A divided by S plus 0.1 A into 1 over, so GCFS, or this is GPFS S square plus 4S plus 5 and 1 divided by 3 S plus A divided by S plus 0.1 A into 1 over S square plus 4S plus 5. So this is a situation. ये 1 plus A GFS HFS की फॉर्म है. So जब हम इधर पहुंचते हैं, so A GFS HFS जो है you can write it in this form. So now if you see it, the open loop transfer function,
This is open loop transfer function form of that. That is the function of A only. So there will be poles. So that's your. So these are the roots. अगर आप देखें तो आपके सामने ये रूट्स नज़र आ रहे हैं जो कि 4 आपके पोल्स यहाँ पड़े हुए हैं. 4th ऑर्डर पोलिनोमियल है आपका. सो यू हैव प्लेस्ड दीज 4 पोल्स. s इज इक्वल टू 0 पे एक पोल पड़ा हुआ है. s इज इक्वल टू -2.47 पे एक पोल पड़ा हुआ है. -2. ये थोड़ा सा स्केलिंग में डिफरेंस है, तो ये ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा. एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स जो हैं वो आपके 0.767 प्लस माइनस j.793 पे आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स जो हैं पड़े हुए हैं. ठीक है. सो नाउ we have assumed that k is fixed which is 3 and d is fixed which is 10. So a is adjustable. So अब आपका जो root locus है that is depending on the variable a. Again, as it was the case in PI compensation, 2 of the open loop poles जो हैं they are the dominant closed loop poles of uncompensated system. So you can see it here. और ये आपके ये poles जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. ठीक. So as we know that अगर हम इनको a की वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे तो what will happen कि आपके इस केस में जी एनी आइडिया कि किस तरह से ये पोल मूव करेंगे? जी इरफान. इरफान बेटा बताइए जरा ये पोल कैसे मूव करेगा? ए की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. सर राइट हैंड पे मूव करेगा. ये राइट साइड पे मूव करेगा. गुड, शाबाश. अच्छा, और ये वाले पोल नजर आ रहे हैं, इन्होंने इस तरह मूव करना है. ठीक है. एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा. ये आपके एसिम्प्टोट्स पड़े हुए थे. और व्हाट अबाउट दिस पोल इरफान? ये सर लेफ्ट पे मूव करेगा. ये लेफ्ट पे मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा. ठीक है. ये तो अब हमें पता चल गया. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इरफान, हमें क्या चीज चाहिए? स्टेबिलिटी सर. मैक्सिमम किस पॉइंट पे वो हमारा स्टेबिलिटी है सर? मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें चाहिए. तो मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें किस जगह पे मिल रही है? ये पोल जो कॉम्प्लेक्स पोल है सर हमारा 0.767 और 0.73 सर. ये इस पॉइंट बेटा ये तो ये वाले पोल थे. यस सर. ये तो ये वाले पोल हैं. क्या हो गया? पोल्स अलाइन हो गए. जब पोल्स अलाइंड हो गए हैं इस जगह पे आपको मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो मिल रही है. सो और इस पर्टिकुलर जगह पे हम कहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी मिली. एंड ऑफ कोर्स ये सिचुएशन डेवलप कैसे हुई है? ए की वैल्यू को चेंज करने से हुई है. सो ए जब 0.251 हुआ तो ये वाला पोल इधर पहुंचा, ये वाला पोल जो है ये इधर पहुंचा, और ये वाला पोल जो है वो इस जगह पे पहुंचा, और ये तीनों जो हैं पोल्स वो अलाइंड हो गए. ठीक है. और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इन जो पोल्स की वैल्यू है, ये वाला जो पोल है जो रियल एक्सिस पे रखा हुआ था, ये पोल आ गया है -0.550 पे. ये जो दो पोल हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल थे, ये पोल्स हैं आपके -0.550, माइनस आ गया ये j 0.523. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज -0.550 प्लस j 0.523 पे. और ये वाला पोल जो है ये मूव कर रहा था इस तरफ और ये यहाँ पे पहुंचा, और इसकी जो आपकी एक्स एक्सिस पे लोकेशन है दैट इज -2.38. एग्रीड? जी बेटा, एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. नंग्याल, हलीमा, अलीना, No, sir. ईशा बेटा? नो सर, क्लियर है. क्लियर है. असफर? यस सर.
जी असफर, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। चलें फिर बताएं रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी इस वक्त। असफर जी सर। बोले ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी? सर -0.55। ग्रेट, -0.550, जबरदस्त। तो दिस इज योर रिलेटिव स्टेबिलिटी जो कि आपको यहां पे मिल रही है, ठीक है। और ए का आपको पता चल गया। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अब आप इस ए को फिक्स करेंगे। आपने ये ए सेलेक्ट कर लिया है और अब आप जाएंगे अपने के को वेरी करने के लिए। सो ये जो आपको रूट लोकस है, ये आपको ओरिजिनल सिस्टम का रूट लोकस दिखा रहा है। दैट वाज द रूट लोकस फॉर योर ट्यूनिंग के लिए, आप अपने ए को ट्यून करने के लिए देख रहे थे। दिस इज द सेम केस एज वी वर डूइंग इन आवर पीआई कॉम्पनसेटर, ठीक है। सो व्हाट विल बी डूइंग नाउ, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है। So for the obtained value of A, which is in fact 0.251, we will be varying K in the original transfer function. Original transfer function आपका क्या था? This was your original transfer function. अब A की वैल्यू इसमें पता चल गई है, this was your K 3। अब इसको आप K लेके चलेंगे, so this is K, this is K, और इसके साथ जो है आप अपना ट्रांसफर फंक्शन जो है इसके ओपन लूप पोल्स फाइंड आउट करेंगे। दैट इज इनफैक्ट ए में प्लेस कर दें 0.251 और उस केस में ये आपके पास ओपन लूप पोल्स आ जाएंगे। सो अगेन इस केस में आप 4 इसको हम दोबारा देख लेते हैं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो DFS जो है इस केस में A इज इक्वल टू 0.251 के लिए दैट इज K S plus 0.251 divided by S 0.0251 into 1 plus S square plus 4S plus 5 and divided by 1 plus K S plus 0.251 divided by S plus 0.0251 and into 1 over S square plus 4S plus 5. So in this case आपके पास this is your ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका, ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है और ये आपके पास दिस पोर्शन जो है आपका, इसको ब्लैक में मैं सर्कल कर देता हूँ। दिस पोर्शन इज इन फैक्ट के जी सी एफ एस जी पी एफ एस है। दिस इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड 1 प्लस जो है आपका दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। और इस केस में जो आपके पोल्स आ रहे हैं S1 इज इक्वल टू 0 पे पड़ा हुआ है और S2 जो है दैट इज इक्वल टू -0.0251। आपके पास S3 जो है -2 प्लस J पे है और S4 जो है वो -2 माइनस J पे है एंड वी हैव अ 0 एट S इज इक्वल टू -0.251। सो दैट्स द सिचुएशन। ये अब आपके सामने आ गई है सिचुएशन। ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है आपका, ये आपके पास पोल्स पड़े हुए हैं -2 प्लस माइनस J पे, आपके से ओवरऑल से वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं। फिर आपके पास एक पोल जो है दैट इज एट S इज इक्वल टू 0 पे पड़ा है और दूसरा पोल जो है -0.0251 पे पड़ा हुआ है। ठीक, अब ज़रा बताइए कि जैसे ही आप K की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो इन पोल्स की मूवमेंट जो है वो कैसे शुरू होती है? ये इस तरफ मूव करना शुरू करता है, दिस पोल स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन और फिर उसके बाद ये वाला जो आपके पास पोल पड़ा हुआ है दैट वुड स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन।
सो एट k इज इक्वल टू 3, जो कि हमारा केस चल रहा था प्रीवियसली, k इज इक्वल टू 3 पे आपके पास जो पोल्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो यहाँ मूव कर रहा था वो ये रखा हुआ है. Rather it should have been these one, but anyways, so बल्कि कहना चाहिए कि k is equal to 5 पे उसने उधर मूव कर जाना है. सो ये अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बहरहाल इसको ये देख लीजिएगा. सो k is equal to 3 पे सपोज इधर हैं आपके पास पोल्स. सो k is equal to 5 पे क्या होगा कि ये वाले पोल्स इधर चले गए हैं और ये वाला पोल जो है वो इस तरफ गया है. सो ये नहीं है बल्कि इस तरफ. ठीक. सो अल्टीमेटली अब आपने k की वैल्यू चेंज करके और आपने अपना रूट लोकस जो है वो देखा है और उसकी बेसिस पे आप ये फैसला कर रहे हैं कि k इज इक्वल टू 3 पे आपका जो सेटलिंग टाइम था दैट वाज इक्वल टू 8.7 सेकंड्स, व्हिच वाज लॉन्गर देन द सेटलिंग टाइम ऑफ 2.6 सेकंड फॉर एन अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम. सो नाउ यू हैव इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ k, ts ड्रॉप्स टू 5.1 सेकंड. और फिर अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं k की वैल्यू को तो सेटलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करना दोबारा शुरू कर देता है. सो आप इस k को फिक्स करते हैं 5.1 पे और अब आपके पास ऑप्शन है कि आप k इज इक्वल टू 5 लेके चलें और रिपीट करें फॉर द प्रीवियस प्रोसीजर फॉर द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ a को दोबारा से आप ट्यून इन करने की कोशिश करें, या फिर आप इसी को अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो यू स्टॉप द प्रोसीजर एंड आप कह सकते हैं कि मेरा d की वैल्यू 10 है, मेरे k की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 0.251 है. सो दिस इज द सिचुएशन. k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 0.25 पे 51 पे आपके पास अब ये पैरामीटर्स जो हैं, स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो अचीव हो रही हैं. ट्रांसमिटेंस जो है दैट इज दिस थिंग, वी हैव यूज्ड इट इन आवर कैलकुलेशंस. सो दिस इज माय ट्रांसमिटेंस. परसेंटेज ओवरशूट स्टेबिलिटी जो है आपकी क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो परसेंटेज ओवरशूट ज़्यादा है आपका. क्लोज लूप जीरो जो है वो -0.251 पे है. सेटलिंग टाइम आपका 5.1 है विच वी हैव ऑलरेडी सेड. एंड ये आपके क्लोज लूप पोल्स हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, यानी मूव कर रहे थे जो आपके पोल्स. अब आप अगर देखें तो आपके पास जो पोल्स इस वक्त मौजूद हैं वो कौन से हैं कि हम कह रहे हैं कि आपका एक पोल जो है बल्कि यहाँ से देखनी चाहिए -0.325 पे एक पोल पड़ा हुआ है और -2.80 पे. -2.80 पे कौन सा पोल पड़ा है? ये k इज इक्वल टू 5 पे. ये वाला पोल जो 3 पे पड़ा हुआ था ये इस तरफ क्योंकि मूव कर रहा था इसलिए ये आपका -2.80 पे है. प्रोबेबली -2.80 ये जी ये -2.80 पे पड़ा हुआ है. इसी तरह से ये वाला जो पोल था आपका जो 3 पे यहाँ पे था, ये वाला पोल जो निकला है ये इधर आया है. सो ये k इज इक्वल टू 5 पे पड़ा हुआ है, ये -0.325 पे. और ये वाले पोल्स जो आपके k इज इक्वल टू 3 पे किस लोकेशन पे थे? k इज इक्वल टू 3 पे इनकी लोकेशन क्या थी? जो ये थी. फिर ये आगे बढ़े हैं तो इन दैट केस इनकी जो लोकेशन है दैट इज -0.450 ± j1.8. मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी पे इनकी वैल्यू थी -0.550 + j0.523. लेकिन क्योंकि वो आगे बढ़े हैं तो इस वजह से अब आपके पास इनकी वैल्यू जो है वो -0.450 हो गई. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? सर अब मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए के 5 रख के दोबारा a को वेरी करेंगे. जी अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, यानी ये अगर आप दोबारा से प्रोसेस चलाना चाहते हैं तो यस. लेकिन इस एग्जांपल में उसने ऐसा किया है कि k इज इक्वल टू 5 पे उसने कहा कि मेरा जो सेटलिंग टाइम है जो कि 5 सेकंड है दैट इज गुड इनफ और आई विल लिव विद दिस. सो इसलिए ये इटरेशंस में उसने यहाँ पे रोक दी हैं. अदरवाइज एज इट इज रिटन इन दिस ब्लैक कि अगर आपने k इज इक्वल टू 5 फिक्स कर लिया है तो यू कैन गो बैक. इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप वापस आ सकते हैं. यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था k इज इक्वल टू 3 के साथ, तो अब आप k इज इक्वल टू 5 के साथ दोबारा इसी इक्वेशन में दोबारा जाएंगे. अब a के लिए आप इसे दोबारा रूट लोकस जो है अब a के लिए उसकी जो लोकेशंस हैं पोल्स की वो चेंज हो चुकी हैं. ठीक है, अब आप a जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे फिर सिचुएशन डिफरेंट आएगी बिकॉज नाउ यू आर स्टार्टिंग विद k इज इक्वल टू 5 के साथ फिक्स करने के साथ आप अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो देख रहे हैं. सो आपको दोबारा से कोई नई वैल्यू मिलेगी जहां पे आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है
वो दोबारा आप मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी लेंगे एंड देन यू विल बी फिक्सिंग दैट ए, फिर आप जाएंगे वापस उधर और उस के की वैल्यूज को ट्यून करेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देखते रहेंगे, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग टाइम, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ राइज टाइम, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ओवरशूट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टाइम स्पेसिफिकेशंस जो हैं किसी भी सिस्टम की, आप वो देखते रहेंगे और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो यू विल बी फिनिशिंग योर डिज़ाइन प्रोसीजर। सो हियर इट इज, ही इज सेइंग के ओके फाइन, के इज इक्वल टू 5 पे आपको जो सेटलिंग टाइम 5.1 सेकंड मिल रहा है, दैट्स इनफ। सो दैट्स व्हाई ही हैज स्टॉप्ड दिस आइट्रेशंस और यहाँ पे पहुंचा। सर सूटेबल रेंज क्या है सेटलिंग टाइम की, जिस पे हम कह सकते हैं कि ठीक है अब हमारे पास रिजल्ट सही आ रहे हैं? जितना कम से कम हो, जितना कम से कम हो। सर तो अगर ये 5.1 से भी कम हो तो इट वुड बी बेटर। यस, व्हाई नॉट। देखिए, आप अगर प्रोपोर्शनल गेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, जो पहला आपका था उसमें तो 2.6 सेकंड्स था, ठीक है ना। लेकिन उसमें फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है उसके इश्यूज, उसके मसाइल थे। सो ये डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सिचुएशंस हैं और किन सिचुएशंस में आप अपना कॉम्पनसेटर जो है वो ले रहे हैं। आपने लैग कॉम्पनसेटर लेना है, आपने इंटीग्रेटर लेना है, क्योंकि इशू ये था कि हम कुछ ऐसे काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ अचीवमेंट टाइम स्पेसिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम वो नहीं अचीव कर पा रहे थे इन आवर प्रोपोर्शनल गेन कंट्रोलर। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एन अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास जो लेवरेज है दैट इज फॉर चेंजिंग के ओनली। जबकि आप पीआई कंट्रोलर में जब आप जाते हैं तो यू कैन चेंज के एंड ए, और जब आप लैग कॉम्पनसेटर में आ रहे हैं तो इवन यू हैव मोर लेवरेज और लिबर्टी टू चेंज द पैरामीटर्स व्हिच आर के, ए एंड डी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी की बेसिस पे आप अपने पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं एंड यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा ईशा? यस सर। ओके, नाउ इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है, रैंप एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जरा कैलकुलेट करके बताएं कि ये इसकी वैल्यू जो है 10 कैसे आई है। कर सकते हैं? सर 0.251 divided by 0.0251. Not exactly, but kind of. देखो बेटा, रैंप एरर कोएफिशिएंट के लिए जो हमारे पास K1 जो है, that is ramp error coefficients, and that's equal to limit s tends to 0, s1 जो है वो SC हो जाएगा GCFS and GPFS, and that's equal to limit s tends to 0 and s plus 0.0251 into 1 over s square plus 4s plus 5, and as a result of that you will be getting limit s tends to 0 k into a divided by this 5 और b divided by a कर लेते हैं, sorry it is 5, that is coming from here जब आपने लिमिट अप्लाई किया तो। so as a result of that it is k is equal to 5, a is equal to 0.251 and divided by 5 into 0.0251, and as a result of that this is equal to 10, ठीक है बच्चा?
जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर क्लियर है। ओके, सो अनकम्पनसेटेड सिस्टम के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपकी रैम्प एरर जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 16.6%. सो दैट्स योर रैम्प एरर जो है ये प्लॉट की गई है. यू कैन कंपेयर इट विद योर अनकम्पनसेटेड सिस्टम. सो यहाँ पे आपकी रैम्प एरर जो है वो रिड्यूस हो रही है. सो ये परफॉर्मेंस जो टाइम स्पेसिफिकेशंस हैं ये यहाँ पे ये इम्प्रूव करें क्योंकि और इसी तरह से स्टेप रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो ये लेस स्टेबिलिटी जो है वो शो कर रहा है आपको, बिकॉज इट इज गिविंग यू हायर राइज टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट जो है वो आपको ज़्यादा दे रहा है एज कम्पेयर टू अनकम्पनसेटेड सिस्टम. यहाँ पे आपका सेटलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा है, परसेंटेज ओवरशूट जो है वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रादर दोज ऑफ uncompensated systems where percentage overshoot or settling times. सर जी जी बोलें. सर ये हमारे पास अब ये GCFS आया है, तो सर इसको मैंने ये तो कंट्रोलर हमारा डिज़ाइन हो गया है, तो नेट कंपनसेटर सर ये को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना हो इसको मतलब कौन से किस तरह सर इसे हार्ड में एक लाइक रजिस्टर कैपेसिटर या वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है? तो आपने अपने सर्किट के कोर्स में ये चीज़ नहीं देखी थी, लैपलास ट्रांसफॉर्म किस तरह से आपके जो RLC सर्किट्स जो हैं वो किस तरह से एस प्लेन पे एक्सप्लेन होते हैं, रेजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स और ये सारी चीज़ें. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या आपका RLC सर्किट है तो ये उन्हीं के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं. यस सर. रेजिस्टर्स के थ्रू, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ये उन्हीं के थ्रू ही आपका लैपलास डोमेन पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लेस्ड हैं. ठीक है. यस. तो थोड़ा सा अगर इसको कोशिश करें तो आप इसी चैप्टर 1 में भी आप जा सकते हैं. चैप्टर 1 कंट्रोल सिस्टम का जो है आई हैव डेलिबरेटली स्किप दैट बिकॉज क्योंकि आप ये सारी चीज़ें करके आए होते हैं तो मैंने उस पर टाइम नहीं लगाया था. तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं अपने सर्किट के कोर्स के साथ कि किस तरह से लैपलास पड़ा हुआ है ना सर्किट में. यस सर. तो उसको देख लें, एक आध एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से इस ट्रांसफर फंक्शन को, ये जो ट्रांसमिटेंस है, हाउ दिस कैन बी प्लेस्ड. इनफैक्ट इस केस में अगर आप देखें तो ये जो D है विच इज नथिंग बट A ओवर B, तो ये क्या है 1 + R2 / R1 हो रहा है. ठीक है. अगर आप इसी एग्जांपल को जाके देखेंगे बैक साइड पे तो 1 + R2 / R1 की मेरे ख्याल है चैप्टर 1 में आपको ये एग्जांपल मिल भी जाएगी कि किस तरह से ये कैस्केड लैग जो है इंप्लीमेंट हो सकता है. तो इस केस में R2 और R1 दीज आर द रेजिस्टर्स. ठीक है. सो इन रेजिस्टर्स की बेसिस पे आपने कहा कि ये 10 है, 1 + 10 या 1 + 9 करके तो D will be equal to this thing. So as a result of that what will happen, अगर D की वैल्यू 10 है तो ये R2 / R1 जो है ये रेशो क्या होनी चाहिए, ये 9 होनी चाहिए. ठीक है. थैंक्स सर. अगेन एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. यहाँ पे हम कंट्रोल का मैथमेटिक्स देख रहे हैं बट ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड टू सर्किट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एसोसिएटेड है ये चीज़. जब आप फिल्टर्स की बात करते हैं तो फिल्टर्स क्या हैं, RLC सर्किट्स ही है ना. तो आप उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या टाइम रिस्पांस जब आप देख रहे होते हैं तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट द लैपलास डोमेन टू द आपका j-ओमेगा एक्सिस के साथ जो कि कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी है. या इसी तरह से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसी z डोमेन को j-ओमेगा एक्सिस जो कि आपका j-ओमेगा सर्कल, एक्सपोनेंशियल j-ओमेगा सर्कल है which is associated with the Fourier transform. तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को आपके सामने तीन चीज़ें, कंट्रोल जब आप पढ़ लें तो आपके सामने तीन चीज़ें चलनी चाहिए. एक आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है या रूट लोकस है जिसके ऊपर आपके पोल्स और जीरोस जो हैं वो मूव कर रहे हैं.
और इसी तरह से रादर पोल्स मूव कर रहे हैं, वो स्टेशनरी हैं आपके जीरोस। और उसके बाद इसी का रिलेशनशिप आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और इस केस में तो आपका रिलेशनशिप जो है वो टाइम स्पेसिफिकेशन में कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बिकॉज इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव सीन कि अगर आपके पास आप अपना ट्रांसफर फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लिखें तो यू कैन फाइंड आउट योर राइज टाइम, यू कैन फाइंड आउट योर peak time, you can find your percentage overshoot, you can find out everything. So at any pole zero location in your root locus, you can associate those values of your poles एक ट्रांसफर फंक्शन के साथ, और उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के को आप अपने टाइम स्पेसिफिकेशंस के साथ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस जगह पे आप पहुंचे हुए हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। So it's basically the relationship कि आप उसे विजुअलाइज कितना अच्छा कर रहे हैं, what is your requirement and where you are reaching. Have I answered your question? Yes, sir. Thanks. Ji beta, any other thing which is left and we have to discuss? जी ईशा बेटा। सर अभी तक तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, अच्छा। 17 people didn't appear in the quiz. असफर आपने क्विज क्यों नहीं दिया? सीआर बैठे हुए हैं आप? सर असफर का मुझे मैसेज आया, वो कह रहा मेरी लाइट चली गई और मेरा 4G नहीं चल रहा। अच्छा ठीक, चलो आगे चलते हैं। So for any compensator design, in fact we are following the same procedure that we will be starting with k is equal to 0.707, which was the damping ratio for your uncompensated system, और जहाँ पे आपकी relative stability जो थी वो maximum थी for that system. And then we select a lag compensator. अगर तो आपकी steady state performance आपने improve करनी है तो आप लैग कॉम्पनसेटर आपने उठाया और आपने डी की वैल्यू जो है वो ए ओवर बी की रेशियो के हिसाब से सिलेक्ट की। बट फॉर मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी यू आर टेकिंग डी इज इक्वल टू 10 पे आप रख रहे हैं और फिर आप ए को ट्यून कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी। वंस यू हैव फाइंड दैट ए, यू विल बी वेरिंग के गिवन डी एंड ए टू सी इफ स्टेप रिस्पॉन्स कैन बी इम्प्रूव्ड। एंड फाइनली जहाँ पे भी आपको ये बेहतर चीज़ें मिल जाएं तो यू विल बी स्टॉप, और फिर आपको अपनी डैम्पिंग रेशियो और जो भी सारी चीज़ें हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है जी? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव टू कैस्केड लीड कॉम्पनसेशन नाउ। अभी तक हमने दो कॉम्पनसेटर्स, रादर 3 कॉम्पनसेटर्स हमने देखे, 3 कंट्रोलर्स हमने देखे। पहला कंट्रोलर जो आपका था दैट वाज प्रोपोर्शनल गेन कंट्रोलर, उसके बाद हमने प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर देखा या कैस्केड प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर कॉम्पनसेटर, और उसके बाद कैस्केड लैग कॉम्पनसेशन हमने देखा, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैस्केड लीड कॉम्पनसेशन। और इस केस में अगर आप देखें तो आपकी ट्रांसमिटेंस जो है इट्स द सेम, but in this particular case what's happening that B is greater than A, और B is greater than A का क्या मतलब होगा बेटा? रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होगी तो वो सर नेयर हो जाएगा। पोल जीरो प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पहले बताएं। पोल सर राइट साइड पे होगा जी। पोल इमेजिनरी एक्सिस से दूर होगा। The pole compensator pole is to the left of the zero और imaginary axis से वो दूर हो जाएगा। ठीक है, so relative stability आपको नजर आ रहा है, that is being increased because of this thing। और आपका change in n minus m, again there is no change in n minus m because n is the number of poles, m is the number of zeros। So because आप एक जीरो और एक पोल ऐड कर रहे हैं, so there will be no change in n minus m, and centroid जो है आपका that would be shifted
by minus b minus a or divided by n minus m, and of course there is no change in the system type number. ठीक है, so आपका जो centroid है that is being moved to the left. ठीक है, और asymptote angles जो हैं वो change नहीं होंगे because n minus m is the same, and primarily the lead compensator जो है आपका that influences the system stability. So the performance of the cascade lead compensator can be evaluated by placing B is equal to AD, that is D is equal to B over A. So these are the things which we have already seen. So इसको अगर हम देखें, so how he has obtained this thing. Previously क्या था, जब आप लैग कॉम्पनसेटर में बैठे हुए थे तो सिचुएशन वाज K over KU into A over B. ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं प्रीवियस केस में जब हम कैस्केड लैग की बात कर रहे थे इट वाज KD over KU, और जब हम कह रहे थे कि K is equal to KU हो जाएगा तो दे विल बी कैंसल्ड आउट, और KI कॉम्पनसेटर की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू KI अनकॉम्पनसेटेड इनटू D. ठीक है जी, अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में थोड़ा सा चेंज है, and what's happening here that we are placing B is equal to AD. यहाँ पे पिछली दफा क्या था, D was equal to A over B, so in that case B was equal to A over D. ये कैस्केड लैग में था. अब आपके पास क्या है, B is equal to AD है, so as a result of that what is happening कि आपका जो KI है for cascade lead compensator that is equal to K over D into limit S tends to 0 SI GPFS, और जब आप ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे so KI compensated divided by KI uncompensated that's equal to K divided by D into K. ठीक है, जी बेटा. Yes, sir. Okay, so in this case the value of K for the compensated system must be at least D times the value of the KU for the uncompensated system. This is important, जो कि हमने यहीं से find out किया, that the value of the K for the compensated system must be at least D times the value of the KU for the uncompensated system. ठीक, यहाँ पे आप वो नहीं करेंगे कि आप KU 3 लेके चलेंगे और फिर K जो है आपका अगर D10 रखना है तो that would be 30. ठीक, सो इस केस में भी अगर आप देखें तो अगर ये 30 डिवाइडेड बाय 10 है तो 3 over 3 जो है दैट वुड बी इक्वल टू 1. सो द K फॉर द कंपनसेटेड सिस्टम मस्ट बी एटलीस्ट D टाइम्स द वैल्यू ऑफ द KU फॉर द अनकंपनसेटेड सिस्टम. व्हाई? बिकॉज आप क्या करना चाहते हैं, जरा सोचिए इसके बारे में. बिकॉज मैं अपने एरर कोएफिशिएंट को मैं सेम रखना चाह रहा हूँ दोनों सिस्टम्स में. अनकॉम्पनसेटेड के कंपैरिजन में मैं अपना लीड कंपनसेशन सिस्टम के एरर कोएफिशिएंट को सेम रखना चाह रहा हूँ. सो मैं अपनी परफॉर्मेंस जो कुछ मैं गेन कर रहा हूँ उसके ऊपर उसको मैं मजीद इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ. रिलेटिव स्टेबिलिटी तो इसकी बेहतर है ही है, यानी रिलेटिव स्टेबिलिटी तो बेहतर है ही है, मैं इसकी जो एरर कोएफिशिएंट है उसको भी मैं उसके अपना आपके अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम के बराबर रख के सो आई विल बी गेनिंग मोर एज कंपेयर टू माय अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम. सो व्हाट आई एम सेइंग, इसको जरा दोबारा हम इसको देखते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर विल बी द सेम जिस तरह से हम पहले रखते आ रहे हैं. दैट वी विल बी सिलेक्टिंग द वैल्यू फॉर K and D and then obtain root locus for A. With A selected, other values of K and D could be tried until an acceptable design is obtained, and the system reverts to
uncompensated system if k is equal to KUD and a is equal to infinity. ठीक है, so a is equal to infinity का क्या मतलब हुआ? Because इस केस में हमारे पास a जो है जी जनाब, k is equal to infinity का क्या मतलब हुआ? d is equal to infinity का, सॉरी a is equal to infinity. जीरो हो जाएगी सर डी से, फिर क्या होगा? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है और क्यों दी गई है ये स्टेटमेंट? ये देखिए सिस्टम, सर वो इक्वल हो जाएंगे ना फिर तब, क्योंकि मेरा दोनों कंपनसेशन इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास GCFS जो है लिमिट के केस में, आपके जो सिचुएशन है आपकी GCFS दैट वुड बी इक्वल टू k, सो आपका सिस्टम जो है दैट वुड बी रिवर्टिंग टू एन अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम. Again we are looking for, as I said, we are looking for k, a and d. तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टाइप 1 का अगर आप देखें तो आपका लीड कॉम्पनसेटेड सिस्टम जो है ये आपके पास, एज वी हैव सेड दैट b is equal to ad, so in this case this is my GCFS generalized system. अगर आप देख रहे हैं तो in that case that's your GPFS and that's your GCFS, that's my lead system का cascaded lead system का आपका transmittance है, that is the transmittance of your plant, and this transfer function can be expressed in terms of k, a and d, and to simplify the transfer function we define k bar is equal to k over ku. यानी आपके पास क्योंकि यहाँ पे ku भी मौजूद है, k भी मौजूद है, so to simplify it we do it as k bar is equal to k over ku, and ultimately this is your ys over rs, which is the transfer function of your system. So इस system का transfer function आपने find out किया है. तो यहाँ पे आपके इस सवाल का जवाब दोबारा मौजूद है. इस पर्टिकुलर केस में जब आप k is equal to KUD रखते हैं तो और a is equal to infinity करेंगे तो in that case आप you will turn up into the transfer function. आपका जो transfer function है वो change हो जाएगा and that would be omega n square s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. ठीक, सो इस पर्टिकुलर केस में ये जो आपके सामने ट्रांसफर फंक्शन मौजूद है इसमें अगर हम k is equal to KUD कर दें और a is equal to infinity कर दें तो you will end up with TFS given on the right side and circled in red. So that's why we will be saying that अब आपका जो सिस्टम फंक्शन है that has been आपका सिस्टम जो टाइप 1 system is reverting to uncompensated form. Okay जी, if k and d are fixed, of course k and d को हम fix कर रहे हैं, the root locus for adjustable a follows by factoring. So क्या situation है? Again we are looking for transforming this transfer function into some form. So TFS मेरे पास मौजूद है and I'm interested in converting it into an something like that GFS HFS into a. So मुझे ये जो open loop transfer function है in terms of a चाहिए, so I'm converting it into this form and so that's my AGFS HFS in that case. And finally what I'm doing कि अब of course इसके poles and zeros जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, so we know that maximum relative stability मैं चाह रहा हूँ
which will be achieved when the dominant closed loop poles are as far as possible from the imaginary axis. Again the similar kind of thing, क्योंकि ये वाला पोल जो है ये यूं मूव कर रहा है, ये वाला पोल जो है ये इस तरह मूव कर रहा है, और ये वाला पोल जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है. दिस इज अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम. 3 पोल हैं, एक पोल 0 पे पड़ा हुआ है और बाकी पोल्स जो हैं वो आपके y एक्सिस जो है वो प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, और ये वाली साइड जो है इसको क्या कहना चाहिए, माइनस जीटा ओमेगा एन विच इज इनफैक्ट एस. ठीक. सो इस लोकेशन पे आपके पोल्स पड़े हुए हैं और ये पोल्स जो उनकी मूवमेंट ये है. सो यू विल बी सिलेक्टिंग फॉर मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स जब आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे आपके डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स, वो आपकी लोकेशन है ए की जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली अगेन द डिजाइन मेथड इज सेम. You will be selecting k is equal to ku as before for 0.7 damping. Select a lead compensator to improve the stability, and then k bar is equal to k over ku, which is equal to d. So ultimately you are, and that's the same thing which I was telling you कि जब आप इसे relate करते हैं with your RLC circuit, so that was your 1 plus R2 or R1 जो है ये D की value है. So we are choosing D is equal to 10 and find A for maximum relative stability. So you will be varying K given A and D to see whether step response can be improved, and then again you will be repeating your step 3 and 4 as required. Okay. So again we will be doing the same example which we have done before. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज है जो डिस्कस करनी चाहिए, दैट द पर्पस ऑफ द लीड कंपनसेटर जो है, दैट इज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी of the system, and this can be achieved by moving the closed loop roots to the left, and as discussed before that we wanted to improve the steady state performance of the system while minimizing the loss of relative stability in case of lag compensator. The lead compensator should be designed to maintain the steady state accuracy while improving stability. यानी यहाँ पे हम अपनी जो स्टेबिलिटी है विच इज ऑलरेडी ओके, हम उसको भी इम्प्रूव कर रहे होंगे और मेंटेन कर रहे होंगे अपनी स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को और परफॉर्मेंस को. लैग कंपनसेटर जो है दैट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम विद एक्सेप्टेबल स्टेबिलिटी बट पुअर स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, वेयर एज द लीड कंपनसेटर जो है दैट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम with acceptable stability, steady state accuracy and poor stability. यानी ऐसे सिस्टम जिनके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी और उनकी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस जो है वो रीजनेबल होगी, वहां पे हम लीड कंपनसेटर इस्तेमाल करेंगे. और इसी तरह से लैग कंपनसेटर अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनकी स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस अगर पुअर है और उनकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज एक्सेप्टेबल, इन दैट केस वी विल बी अप्लाइंग the lag compensator. So we must be knowing the situations, और उस situation में हम particular lead या lag compensator जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे. So in this case the best choice for A, as we were talking about कि A को हम change करेंगे तो आपके stability जो है, relative stability जो है वो हम achieve कर सकते हैं. The best choice for A in that case, as discussed before, that the dominant closed loop pole should be as far as possible to the left of the closed loop uncompensated poles. Again, we are looking for maximum relative stability and selecting A for that maximum relative stability. So, अगर हम उस example पे दोबारा आएं तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास अब जो system है, again मैं just to make you visualize the things. So this is my GCFS.
that's my plant. So GCFS जो है, GPFS is given. We are using it for the same example. 1 plus s square plus 4s plus 5. The same type 1 system which we were using for the last 3 cases for cascade proportional, for PI, and for cascade lag. So we want to see the effects of applying this cascade lead compensator on this plant, and GCFS जो है, that is nothing but Ku or K कह लें, S plus A divided by S plus AD, where we have assumed that B is equal to AD for cascade lead compensator. So as a result of that, TCFS, TFS जो है, that is nothing but GCFS into GPFS divided by 1 plus GCFS GPFS. So as a result of that, you end up with this thing, with this transfer function, where A is the variable, और अब आपने K को KU कर दिया, and as a result of that, you have ended up with this thing. Again, इसको 1 plus GFS HFS into A की फॉर्म में लिख के divided by numerator. So TFS is this thing. यहाँ पे ये गलती है. So TFS is this thing. So again, this portion is giving you the open loop poles, और इन open loop poles की movement की basis पे हमने अपना root locus जो है वो देखना है. हमने देखना है कि कौन सी A की value होगी जिस पे हमारी relative stability जो है वो maximize होगी. We will take that A. We will come back to the same system which was the original system. We will be taking A fix हो जाएगा, AD मिल जाएगा, but the only thing left will be again K. So we will be changing the root locus with respect to K then, and then moving to these steps, we will end up or finalize कि K की value क्या है और A की value क्या है और D की value क्या है for our required specifications. So the root locus for adjustable A requires plotting this thing. We will be plotting this open loop transfer function and selecting Ku is equal to 3, D is equal to 10. So we will be ending up A GFS HFS जो है वो आपका ये बन जाएगा, and that's your A GFS HFS जो है वो आपने प्लॉट की है. तो इस तरह की सिचुएशन है. The value of A for maximum relative stability जो है that is 3.47. ठीक है. Again same situation, जब भी वो aligned हुए हैं तो आपने कहा कि ये मेरे A की वैल्यू है which is 3.47, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो क्लोज लूप पोल्स की इक्वेशन है, ये वाला पोल इस तरफ मूव कर रहा था, इस पोल की इक्वेशन है -1.33. ये वाला जो पोल है इसकी लोकेशन है दे, और इस वाले पोल की लोकेशन क्या है -1.33 प्लस J0.712, और इस वाले पोल की इक्वेशन क्या है -1.33 माइनस J0.712. ठीक है. एंड ये वाला जो पोल है, ऑफ कोर्स ये स्केल जो है ये ब्रोकन है, एंड दैट इज -34.7 पे ये पोल जो है ये पड़ा हुआ है. Any confusions, any questions, the how the things are moving? In fact, सारी की सारा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. We are doing the same thing in all these compensators. We are looking for we are given GCFS, the general form of GCFS for all the compensators. We are moving towards the TFS transfer function by applying this relationship, and then we are shifting towards this thing because we are looking we are taking K is equal to the same as Ku, the proportional gain for our uncompensated system, and then we are fixing D is equal to 10 if D is known. In that case, B is known as well in terms of A. So we are transforming our transfer function in terms of the open loop transfer function in the denominator as 1 plus A GFS HFS, so that we will be plotting our root locus
with respect to A. So any question, beta? Any question, any confusion? No, sir. So as I'm saying that the procedures are the same. All you have to know कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रूट लोकस की कि किस तरह से हमारी चीजें जो हैं मूव कर रही हैं. सो अल्टीमेटली वी एंड अप कि आपने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा a की वैल्यू जो है वो 3.47 है. सो फॉर a इज इक्वल टू 3.47 I will be moving towards the original transfer function. Now I will be varying my k to get the optimum positions. So with k is equal to 30, which was initially the case, the settling time of the step response is 3.6 seconds with 0% overshoot. With increase of k is equal to 40, so that's the situation. K is equal to 30 पे ये situation थी, of course 40 होगा तो ये आगे की तरफ जा रहे हैं. ठीक, ये वाला पोल जो है ये 40 पे इस तरफ जा रहा है, ये वाले पोल्स जो हैं ये इस तरफ जा रहे हैं. So k is equal to 40 पे क्या हुआ है? The settling time drops to 2.5 seconds with 3% overshoot. So for higher values of k, the settling time rises along with overshoot. So again, आपकी performance जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है. So we say that okay, we finish with k is equal to 40, a is equal to 3.47, d is equal to 10, k is equal to 40. We end up with the transmittance of this thing. Closed loop आपका जो zero है वो आपके पास पड़ा हुआ है -3.47 पे. So that is -3.47. This location is -3.47 और आपके जो पोल्स हैं -1.90. ये वाला जो पोल है ये -1.90 पे होगा. k is equal to 40 पे इस तरफ मूव कर रहा है. सो और जो दूसरे वाले पोल्स हैं वो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल उनकी लोकेशन जो है वो -1.03 प्लस माइनस j1.02 है और एक पोल आपके पास -34.7 पे पड़ा हुआ है विच इज दिस पोल. ये स्केल ब्रेक होने के बाद जो है आपको ये -34.7 पे आपको मिल रहा है. सो दैट्स द पोल लोकेशन. ओवरशूट इस केस में आपकी कम हुई है. सेटलिंग टाइम आपका कम हुआ है बिकॉज इनहेरिटेड है लैग कॉम्पनसेशन के साथ. एंड व्हाट अबाउट दिस रैम्प एरर कोएफिशिएंट 0.8? जी जनाब, any volunteer who can tell me from how we have calculated this? Sir, limit s equal to 0 s into k function gc of s. इरफान के अलावा क्लास में कोई और भी बैठा हुआ है? मेमन? मेमन? हाजिक? यस सर. जी हाजिक बोले, ये रैम्प एरर कोएफिशिएंट कैसे फाइंड किया गया? सर अभी नहीं आता ये. जी हलीमा बेटा. Sir, limit s tends to 0. जी जरा GP of s. जी जरा मुझसे करवाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा. एक मिनट, चलें यहाँ पे हम देखते हैं. ये हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. दिस इज लिमिट. आप लिखवाते जाइए, मैं लिखता हूँ. लिमिट s टेंड्स टू 0. जी बेटा. Sir, s into gc of s, gp of s s. into gc of s into gp of s. वेरी गुड. उसके बाद gc of s मेरे पास क्या है? K into It is s plus a a. k into s plus a into s L. s plus b. ठीक है. इस केस में अब क्या सिचुएशन है? अगर हम इस केस में देखें तो अब हम ये यूज कर रहे हैं दिस वन, because we are saying that k is equal to 40, a is equal to 3.47 and for d is equal to 10. आपका जो b है that is 34.7. So ultimately what is my this is 40 s plus 3.47 divided by
S plus 34.7। ठीक है जी। सो इस केस में मैं K1 की तरफ जाता हूँ तो लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू, मैं इसी लिमिट इस इक्वेशन के साथ कर लेता हूँ, वी विल बी एंडिंग अप विद दिस थिंग। सो इट इज K S plus A S plus B into 1 over S square plus 4S plus 5, and so what it will be, K1 will be equal to, when you will be applying the limit, this would be cancelled out. So that is Ka divided by 5B. So it is K, which is in fact 40, into A, which is in fact 3.47, divided by 5 into B, which is 34.7. So that's equal to 0.8. That's your ramp error coefficient. अच्छा जी, ramp error coefficient अगर मुझे मिल गया है तो what will be my, क्या होगी ये error? Any idea? ईशा बेटा, जी सर। जी एरर क्या होगी? अगर एरर कोएफिशिएंट पता चल जाए तो किस तरह से एरर फाइंड आउट करेंगे? सर ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू नहीं बेटा, जब एरर इन आपको ये मिल जाए ना, जब ये, एक तो वो तरीका है ना कि आप TEFS फाइंड आउट करते हैं और TEFS से आप उसको एरर जो है ना वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टेप एरर फाइंड करनी है, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने की थी कि TEFS से आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देयर इज अनदर वे व्हिच हैज ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप विद दिस एज वेल, रादर इसके साथ जो रिलेशनशिप है TEFS का। सो इस केस में आपने 1/K1 जो है दैट इज योर, अगर आपने ये एरर कोएफिशिएंट आपको पता है तो यू कैन एंड अप विद फाइंडिंग द एरर कि क्या आपकी एरर होगी। ठीक है बेटा, आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हाउ वी वर डूइंग इट विद TEFS एंड हाउ वी आर डूइंग इट विद K1। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनको कोरिलेट करें। इन चैप्टर नंबर 2 वी वर डूइंग इट विद ऑल दैट कि किस तरह से हम अपनी रैम्प एरर को या स्टेप एरर को, वी वर फाइंडिंग TEFS पहले फाइंड आउट कर रहे थे which was 1 minus TFS, and then we were using TEFS in the limit of S tends to 0, और फिर उसके साथ RFS के साथ यूज करते हुए हम इसको जो एरर है अपनी फाइंड आउट कर रहे थे। द अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरर इज कि एरर कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट कर लें और फिर उसके बाद आप उस पर डायरेक्टली जो है आप अपनी एरर जो है वो फाइंड आउट। ठीक है बच्चा, चलें जी फिर आगे चलें कैस्केड लैग लीड कंपनसेशन पे। एनी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कर लें। छोड़ दें इसको, अभी यहीं पे रोक दें? यस सर। क्या हुआ, थक गए? सर वो काफ़ी सारी आज असाइनमेंट्स वगैरह ड्यू है तो। चलें ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज हमने दो कंपनसेटर्स जो हैं वो देखे हैं, एक आपका कैस्केड लैग और दूसरा जो है वो कैस्केड लीड। द ओनली डिफरेंस इज दैट आपके पास जो पोल्स और जीरो की, दोनों में आप एक पोल और एक जीरो जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बट इन फैक्ट इट्स द लोकेशन ऑफ द पोल्स एंड जीरोस which is making one compensator is as the lag compensator and making the other compensator as lead compensator. ठीक है, so that's the difference. As far as design is concerned,
डिज़ाइन प्रोसीजर अभी तक हमने जो 3 कॉम्पनसेटर्स देखे हैं, एक्चुअली जो हम जिनको हम कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पनसेटर कह रहे हैं एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल गेन कॉम्पनसेटर, तो तीनों में आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि आप पीआई कॉम्पनसेटर में द ट्यूनिंग पैरामीटर्स पर के एंड ए, आप सबसे पहले अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यू टेक के इज इक्वल टू ku which is equal to 3, जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में था, बिकॉज देयर द डैम्पिंग रेशियो वाज मैक्सिमम और आपका जो 0.707 पे थी। सो उसके बाद आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस a gfs hfs में, एंड a gfs hfs जो है that is your open loop transfer function that is depending on a. You take that root locus which is depending on a, similar to the previous cases where the root locus was depending on k. So as we will be changing our a, our root locus जो open loop poles हैं वो start करेंगे open loop location से, और अगर तो ओपन लूप जीरोस मौजूद हैं तो वो एंड अप करेंगे ओपन लूप जीरोस पे जो आपके क्लोज लूप पोल्स हैं, और अगर नंबर ऑफ n जो है वो ग्रेटर है m से, तो इन दैट केस दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी along with those asymptotes. Once you have found a in that root locus for maximum relative stability, you will take that a, you will go back to your original TFS, and then you will be varying your k for that particular a, and then you will be watching at your performance specification like settling time क्या है, rise time क्या है, overshoot क्या है. So जो आपकी requirement है आप उस तक अपने k को लेके जा सकते हैं, and that is fine. अगर आप उसको fix करना चाहते हैं तो वहाँ पे रह जाएं, लेकिन अगर आप फिर मजीद improvement चाहते हैं तो k को आप वो रखें, वापस आएं AGFS HFS पे. In that case AGFSH आपका k की चेंज होने की वजह से वैल्यूज वो चेंज हो चुका होगा. अब आपको दोबारा मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए जाना पड़ेगा और फिर a की वैल्यू एक नई आएगी, फिर आप उसे दोबारा TFS में लेके जाएं. So that's the procedure you will be following, whether it's a PI compensator, whether it's a cascade lag compensator, or it's a cascade lead compensator. Hope I have given the crux of what's happening in all these compensators. जी बेटा, any questions, any confusions? Alina? Yes, sir. जी बेटा, any questions बेटा? No, sir. Halima, Aisha? Okay, so we leave it here, और